With verb we will put ing. Main verb, you know about main verbs. The action which we do regular in our regular life, those action words are called verbs. Action: eat, drink, talk, walk, laugh, cook, eat, drink, laugh, watch, read. These all are action words and these are called main verbs. Is, am, are, was, were, will, shall. These all are helping verbs who supports noun and verb both. So, is, am, are helping verbs. Cook, eat, drink, laugh, watch, read. These all are main verbs. Is, am, are. These helping verbs always shows the present time. Present means today. That means which work is going on or which work already done, but in today's date, and that means today. Then that is called present. So is, am, are always follow present tense. Okay? Is, am, are, the helping verbs always follow present tense. These are main verbs, and when we show continuity, that means the work is on the action and going on, then we use ing with main verbs. Then we use ing with main verb, as like cooking, eating, drinking, laughing, watching, reading, talking, sleeping. When we add ing, that means the work is going on or in a movement. Okay? That is clear. You know about is, am, are. These are helping words who shows present time. These are main verbs, and when we add ing with main verbs, that becomes present continuous tense. That means the action is going on or the action is on continuity. So let's form some sentences of present continuous tense here. First of all, let's put helping verb. You don't know where to put helping verb, so let's know it. Where to put helping verb? Which helping verb? Which helping verb is, am, are. Okay? I'm writing few names here. Ram, Sheetal, Mohan, and Raghav. Prema, Mridul, and Krishna. Okay, few names are written here. As you can see, Ram, Sheetal, Mohan and Raghav, Prema, Mridul and Krishna. So let's put helping verb according to subject. These are all called subject. Okay. Ram is a single person. Ram is a single person. So we will put is with Ram. Sheetal is a single girl, a single person. So we will put is with Sheetal. Mohan and Raghav. Two candidates are here, one Mohan and second Raghav. Okay. When two candidates are here, that means it becomes plural, and when it becomes plural, we put are. Prema, a single girl name, we will put is.
that is helping verb with nouns because there are name only. Now I am going to write pronouns. He, she, it, they, these. He is always used with, he is always used in the place of a person that means a male person. Male is like a boy or a man. So this is a singular. We will put is with he. She. At the name of any girl, in the place of the name of any girl, we use she. Okay, girl or woman or any females, we use she. This is also singular, so we will put this with singular. It is used for any non-living thing or any animal's name. In the place of any animal's name or non-living thing, we use it. But for a single one, okay, or for singulars, we use is. So that is clear. For singulars, if there is a name, that means if there is a noun or pronoun, when it is singular, we use is. We use helping verb is when the noun or pronoun is singular. If the noun and pronouns are plural, we use are. They used for many candidates. So we will put are. These used for many things or objects, then we will put are because it represents plural. If there is singular, we use is. If there is plural, we use are. That is clear, the use of is and are. Is always goes with singulars. All are always stands with plural, and am always stands with only I. We use am with only I. I am going to market. I am eating fruits. I am drinking milk. I am taking the things. Am is always used with I. That is clear. Now you know about where we will use is, where we will use are, and where we will use am. Okay. Now let's go and form sentences. Few sentences are given here. Okay. But fill in the blanks. You have to do fill in the blanks. Few sentences are given here with blanks. Okay. You have to fill helping verb here according to the subject, and you have to convert these statements in present continuous tense. Okay. So Ramesh is here. If there is a singular name, thing or object, we use is. It is a main word. It is a verb. An action word. It is a verb. So with verb we will put ing to form a present continuous tense. Ramesh is eating mango. Now he. He stands for a singular male. We will put is. Jump. Jump is main verb, and with main verb we will put ing to form present continuous tense. He is jumping high. Now I. With I we will always use helping verb am. So write am here. To make present continuous tense, we have to put ing with
main verb. Main verb is read. Now put ing. I am reading a novel. They are, because they stands for when it shows more than one candidate, then we use pronoun they. So they is plural and we will use are with they because that is plural. Not talk is main verb and with main verb we will put ing to form a present continuous tense. They are talking loudly. Now my mother is a single lady, that is a singular person. My mother is cooking. ing. Cook is a main verb and now I am going to put ing to form a present continuous tense statement. My mother is cooking food. Ramesh is eating mango. He is jumping high. I am reading a novel. They are talking loudly. My mother is cooking food. Now the use of is and are is clear to you all, and we will put ing and we have to put ing with main verb. Main verb, you know the action words. Main verb plus ing to form a present continuous tense. Now come on page number 64, that is exercise. Choose the correct one. You have to choose is and are here according to the subject, that is according to the noun and pronoun. Then after that again you have to put is and are according to given noun or pronoun, and then you have to put ing with main verb. Verbs are given here, action words are given here. You have to put ing to form these sentences in present continuous tense. Now I am going to tell you in Hindi. Is and are helping verb होते हैं और is का यूज होता है जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, एक स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में या जानवर के बारे में, किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पर is का यूज होता है। are का यूज होता है जब हम कई सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। many के साथ में are का यूज होता है, one के साथ में is का, many के साथ में are का, और helping verb am का यूज हमेशा I के साथ होता है। I am reading, I am sleeping, I am talking, I am walking, I am running। I के साथ में am का यूज होता है, plurals के साथ में are का यूज होता है, और singulars मतलब किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम के साथ में is का यूज होता है। ओके, he, she, it के साथ में ish का यूज होता है, they, those, these के साथ में are का यूज होता है, और I के साथ में am का यूज होता है। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब वो काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। और प्रेजेंट मतलब अभी, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? आज, टुडे। प्रेजेंट का मतलब होता है इसी वक्त, जो काम इसी वक्त हो रहा है उसमें हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करते हैं। और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है? ईटिंग, टॉकिंग, जो एक्शंस हम रोज करते हैं, ईट, टॉक, वॉक, रन, इन सब जो हेल्प मेन वर्ब होती है उनके साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं। आईएनजी रहा, रही। आईएनजी का मतलब होता है रहा, रही। ओके, जब हम रहा है, रही है वाले सेंटेंस यूज करते हैं तब हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं। राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। ईट मेन वर्ब है, ईट के साथ में आईएनजी लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें इज एम आर का यूज होता है। और इज एम आर के साथ में जो मेन वर्ब होती है उसमें हम जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है उस मूवमेंट को जो अभी
को शो करते हैं इससे। आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ में ing means present continuous tense. So students, this is enough for today. We will meet again in our next class with another new topic. But before of that, you have to complete your work, which is given on exercise page number 64, and you have to read 63, page number 63 also. Bye bye. Take care and thank you. Good morning students. This is your second period and this period is of Hindi language. So take out your Hindi language book and open up the page number 19. Students, मैंने आपको पाठ 4 संज्ञा पहले पढ़ाया था। अब आपका जो कोर्स है, जो चैप्टर्स हैं वो डन हो चुके हैं और आपने अपनी कॉपी में भी ये चैप्टर कर लिया होगा। आज मैं आपको इसका रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि आपका जो टर्म 2 है वो चैप्टर 4 संज्ञा से आ रहा है। ठीक है, आपने अपनी कॉपी में इतना वर्क कर ही लिया होगा। चलिए, संज्ञा। संज्ञा से क्या आशय होता है? संज्ञा से हम क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हम जो भी अपने आसपास देखते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, डेस्क है, मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, मैं हूँ अध्यापक, आपकी टीचर। तो ये सब क्या है? सबके कुछ ना कुछ नाम है। ये जो नाम है जिनसे आप किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की पहचान करते हो, उनका नाम लेकर, यही नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा किस प्रकार है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? जैसे राम, मोहन, रोहन या आपका कुछ भी नाम है। ठीक है, तो व्यक्ति का नाम, पर्सन का नेम। लेकिन बच्चों, सबसे पहले अगर आपने एक शब्द बोला मैंने लड़का या लड़की, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी तो नाम है। जब आप किसी के बारे में नहीं जानते हो तो आप क्या बोलोगे कि ये एक लड़का है या ये एक लड़की है। तो ये भी क्या है? ये भी नाम है। ठीक है, तो ये भी क्या है? संज्ञा ही है। ठीक है, इसके बाद वस्तु का नाम जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है, मेज, चौक, जितनी भी वस्तुएं हैं आपके पास, आप उन सबको उसके नाम से जानते हो। मैं फिर से बता रही हूँ, आप हर वस्तु को, हर व्यक्ति को किसी न किसी नाम से ही जानते हैं और ये नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, स्थान का नाम हो गया जैसे घाटमपुर, कानपुर या आगरा, दिल्ली। ठीक है, ये क्या है? स्थान का नाम हो गया। भाव जैसे गुस्सा, ठीक है, खुशी, ये सब क्या हमारे भाव है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? भाव। और भाव के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया? किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसी आधार पर संज्ञा के आगे 3 भेद होते हैं। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के 3 भेद हैं।
आपको मैंने पहले भी बताया है और मुझे आशा है कि आपको याद होगा, तो आप जल्दी से बताइए कि वो संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं। चलिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और फिर आपका आता है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक संज्ञा क्या है? मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, ठीक है। जाति, जैसे कि लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से हमें उसकी पूरी जाति के बारे में पता चले या पूरी जाति का ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, अध्यापक, ये सब क्या है? अगर आपने लड़की बोला, ठीक है, तो आपको उस लड़की शब्द से आप पूरी जाति का बोध होता है कि सभी लड़कियां ही कहलाती हैं। सभी लड़कियों का एक कॉमन नेम है लड़की, ठीक है। ऐसे ही लड़के, क्लास में कई लड़कियां होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा है, उसे हमें पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है। लेकिन जब यही लड़कियों में से किसी का एक स्पेशल नेम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम। जैसे उन लड़कियों में लड़की का नाम है राधा और लड़के का नाम है राकेश, तो ये नाम क्या होगा? ये स्पेशल नेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है आपका जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक क्या होगा? जैसे लड़का, लड़की, ठीक है, ये आपकी क्या होते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे पेंसिल, एक पेंसिल, सभी पेंसिल। शेर क्या है? पूरी सभी शेर को हम शेर ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई जानवर किसी का पालतू है तो वो उसका नाम रख लेता है, तो वो क्या हो जाता है? स्पेशल हो जाता है, उसका विशेष नाम हो जाता है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने किसी लड़की का नाम बोला राधा, लड़के का नाम बोल दिया राकेश, ठीक है। स्थान का नाम बोल दिया, जैसे कोई कहते हैं शहर चले जाओ, तो शहर क्या है? बहुत से शहर है, सभी शहर को शहर कहते हैं। लेकिन अगर कोई कहते हैं दिल्ली शहर चले जाओ, तो दिल्ली क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, सॉरी प्रॉपर नेम हो गया, ठीक है, व्यक्तिवाचक। अब हम आते हैं भाववाचक की तरफ। भाववाचक क्या होते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी के गुण, दोष या अवस्था का ज्ञान होता है। गुण, दोष या अवस्था का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, ठीक है, मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और बचपन, अवस्था हो गई, ठीक है, बचपन। बच्चों, यहाँ पर आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा को हम ना तो देख सकते हैं और ना तो छू सकते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं को ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं, ये अनटचेबल होती हैं, ठीक है, अनटचेबल होती हैं, ठीक है। और इनको हम कुछ शब्दों से में कुछ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे बच्चा से हमने बनाया बचपन, मीठा से मिठास, अपना से अपनापन, शिक्षक से शिक्षा, ठीक है। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने संज्ञा के बारे में जाना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम जिसको जिस नाम से जानते हैं, नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताती है, जातिवाचक संज्ञा उस पूरी जाति का ज्ञान कराती है, वहीं भाववाचक संज्ञा से हमें किसी के गुण, दोष या अवस्था का ज्ञान होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में ये एक्सरसाइज आप पहले कर चुके, लेकिन आज आपको फिर से ये एक्सरसाइज आपको रफ कॉपी में करके इनका अभ्यास करना है, जिसमें से भाववाचक संज्ञा में जो भाववाचक संज्ञा से उनके मूल शब्द बनाने वाली एक्सरसाइज थी, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी। आप एक बार पुनः इस एक्सरसाइज को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप रफ कॉपी में इसे करके इसका अभ्यास करेंगे, परिभाषा याद करेंगे।
So students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and also learn. Thank you. Bye bye. Take care.